Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. It's been long years, Mataji. So हम लोग start करते हैं, Mataji. Some of them will further join. तो आज हमारे साथ हैं श्याम हर्षिनी माता जी, जो हिज होलिनेस भक्ति बृंद गोविंद महाराज जी के डिसाइपल हैं। और माता जी और प्रभु जी दोनों पहले दुबई में थे काफ़ी साल, एंड फिर उसके बाद में वो कतर में शिफ्ट हो गए, और कतर में वहाँ पे बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा वहाँ पे कांग्रेगेशन को कल्टीवेट कर रहे हैं वहाँ पे, और बहुत से नए भक्त बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक जो है इंस्पायरिंग चीज़ है जो हमको इनसे सीखना चाहिए, एंड बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। तो जैसे अभी कुछ दिन पहले प्रभु जी भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे हमारे क्लास को एड्रेस किया था। तो आज हम लोग जो है माता जी से हम लोग सुनते हैं। तो ओवर टू यू माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभुजी। तो जो भी हो रहा है वो कृष्णा की मर्जी और गुरु महाराज की ब्लेसिंग से प्रभु, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो गुरु महाराज आते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं सबको। So we'll start from Om Yes, Namo Mata, yes. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udire Nashtaprayeshu Padreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Naishtuki Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Girim Yatkripātam Vande Shri Guru Dīnataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Isharam. So Prabhu, is anybody sharing the screen, or can I share the shloka? Yeah, if you want, you can share, Mataji. So today we are reciting. Yeah. So Prabhu, shall I read, or somebody else is contributing here? No, Mataji, if you want, you can read. Okay. Hare Krishna. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 12, Shloka 17. Tasman naman Vishnorata ito loke. Okay, yes, Prabhu. Tasman naman Vishnorata iti loke bhavishyati. Iti loke bhavishyati. Na sandeho mahabhaga. Na sandeho mahabhaga. Mahabhagavato mahan. Mahabhagavato mahan. Anybody would like to recite? Pransaka Prabhu. Okay, so we'll go for the translation. Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.
For this reason, this child will be well known in the world as one who is protected by personality of Godhead. O most fortunate one. There is no doubt that this child will become a first class devotee and will be qualified with all good qualities. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The Lord gives protection to all living beings because He is their supreme leader. The Vedic hymns confirm that the Lord is the supreme person amongst all personality. The difference between the two living beings is that one, the personality of Godhead, provides for all other living beings, and by knowing Him, one can achieve eternal peace. Katha Upanishad. Such protection is given by His different potencies to different grades of living beings. But as far as His unalloyed devotees are concerned, He gives the protection personally. Therefore, Parikshit Maharaj is protected from the very beginning of his appearance in the womb of his mother. And because he is specially given protection by the Lord, the indication must be concluded that the child would be a first grade devotee of Lord with all good qualities. There are three grades of devotee, namely Mahabhagavat, Madhyamadikari, and Kanishtadikari. Those who go to temple of Lord and offer worship respectful to the deities without sufficient knowledge in the technological science and therefore without any respect for the devotees of Lord are called materialistic devotees or Kanishtadikari. The third grade devotees. Secondly, the devotees who develop a mentally of genuine service of Lord and who thus make friendship only with similar devotees, show favor to the neophyte and avoid the atheist are called the second grade devotees. But those who see everything in Lord and everything of Lord and also see in everything an eternal relationship of Lord, so that there is nothing within their purview of sight except the Lord, are called the Mahabhagavats and or the first grade devotees of Lord. Such first grade devotee of Lord are perfect in all aspects. A devotee who may be in any of these categories is automatically qualified by all good qualities, and thus a Mahabhagavat devotee like Maharaj Parikshit is certainly perfect in all respects. And because Maharaj Parikshit took his birth in the family of Maharaj Yudhishthir, he is addressed herein as Mahabhagavat or the greatest of fortunates. The family of which a Mahabhagavat takes his birth is fortunate because due to the birth of a first great devotee in the members of the family, past, present, and future, up to 100 generations, become liberated by the grace of Lord, out of respect for his beloved devotees. Therefore, the highest benefit is done to one's family simply by becoming an unalloyed devotee of the Lord. Hare Krishna. Beautiful purport by Srila Prabhupada. We'll just start with Mangalacharan. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunadanvitam Tam Sajivam Satvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Shri Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Hare Krishna, everyone. And thank you, Gopi Manohar Prabhuji, for giving me this opportunity to get associated with all elevated devotees like you, Prabhu. And I offer my respectful obeisances to our Guru Maharaj and beg for his mercy so that I can speak well, and blessings of Srila Prabhupada. So, in this shloka, we are going to discuss about the birth of Parikshit Maharaj. As we all know that Parikshit Maharaj was saved and saved by Lord himself when Lord enters the womb of Uttara, mother of Parikshit Maharaj. So this shows, yes, there is a Hare hand Krishna. raised. Yes, Prabhu. Sorry, Mataji, this is myself, Gopi Manohar. Can you speak in Hindi, Mataji, because some devotees would like to hear in Hindi. Please. जी प्रभु, मेरी हिंदी थोड़ी टूटी फूटी होगी, इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो इस श्लोक में हम डिस्कस करेंगे कि परीक्षित महाराज के बारे में। परीक्षित महाराज का जन्म जब हुआ तब उत्तरा माता किस तरह उन्हें कृष्ण ने उनकी भूमि में जाकर परीक्षित महाराज को प्रोटेक्ट किया। तो ये दर्शाता है कि भगवान ही इस पूरी जगत के विघ्नहर्ता है और इस जगत में सभी को वो की रक्षा कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर देखते हैं कि जब भगवान किसी भक्त की रक्षा करते हैं तो जैसे इस परपट में श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करें कि तीन तरह के भक्त होते हैं, एक कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और एक सर्वोत्तम उच्च अधिकारी, महाभागवत। तो जब भगवान वैसे भगवान किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, किसी में फर्क नहीं करते, भगवान के लिए सारे बच्चे एक तरह से हैं। परंतु ये तीनों जो कैटेगरीज हैं डिवोटी की, भक्तों की, तो भगवान उन सबको एक ही नजरिए से देख रहे हैं और उन सबकी रक्षा करते हैं। पर जब हम परीक्षित महाराज की बात करते हैं तो परीक्षित महाराज तो युधिष्ठिर महाराज के परिवार में जन्म लिया है। जो युधिष्ठिर महाराज स्वयं एक उच्च अधिकारी भक्त है, तो उनके परिवार में जो भी जन्म ले रहा है वो भी एक उच्च अधिकारी भक्त होगा। तो परंतु ये हमेशा से हम सुनते आए हैं कि आचार्य कहते हैं कि राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। तो जब ऐसा कहा जा रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब कृष्ण किसी को की रक्षा करना चाहते हैं तो कोई भी विपदा उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकती, और जबकि कृष्ण किसी को यदि किसी तरह से मारना चाहते हैं तो कोई भी देवी देवता या कोई भी इस जगत की शक्ति उसे बचा नहीं सकती। तो हम जब ये पुराण पढ़ रहे हैं और शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जब जो रावण था, रावण भगवान शिव का परम भक्त था और वो हमेशा भगवान शिव की आराधना करते हुए उसने इतनी अलग अलग तरह की शक्तियों का अर्जन किया। परंतु जब राम भगवान ने उसका पतन करने की ठान ली तो भगवान शिव भी उन्हें रोक नहीं पाए, क्योंकि रावण ने जो कर्म किए थे उसे उसकी सजा मिलनी थी। तो भगवान ने उसे मारा। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो प्रहलाद महाराज हैं, जो परम भक्त हैं, उन्हें उनके पिता ने अलग अलग तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की। कभी उन्हें ऊंचे पर्वतों से फेंका, कभी उन्हें सांपों के कमरे में बंद कर दिया, या कभी उनकी बुआ उन्हें आग पर लेकर बैठी। परंतु हर स्थिति में भगवान ने उनकी रक्षा की और उन्हें बचाया। तो ये दर्शाता है कि भगवान ही जो है, भगवान कृष्ण, वो ही इस पूरे जगत के पालनहर्ता हैं, और जो उनके परम भक्त हैं, भगवान उनको एक हमेशा, जो हम कई बार एक एड में देखते हैं ना, च्यवनप्राश के एड में, कि
एक बच्चे के पूरे शरीर पर एक आवरण बन गया, एक कवच बन गया है, वैसे ही भक्तों के ऊपर एक कवच होता है, एक सुरक्षा का आवरण होता है। ये सुरक्षा कवच कहाँ से आ रहा है? ये सुरक्षा कवच होता है भगवान के द्वारा, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं और वो प्रेम इस तरह से दर्शाते हैं। तो जो भगवान को में असीम श्रद्धा नहीं रखते, या जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध उनके परम भक्तों को परेशान करते हैं, जैसे रावण है, कंस है, और आज हम देख रहे हैं कि इस कलयुग में तो हर जगह, हर क्षेत्र में, हर देश में हम कंस और रावण देख रहे हैं। तो ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं और क्यों पैदा हो रहे हैं? तो श्रीला प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि जब एक मनुष्य भगवान को भूलने लगता है, तो यह जो उसकी भूलने की स्थिति है, उस समय माया उस पर हावी होती है, और यही परिस्थिति है जब वह भगवान कृष्ण से धीरे धीरे दूर हो जाता है और इस भौतिक जगत की हर स्थिति को एंजॉय करना चाहता है। वो चाहता है कि वो सोचता है कि मैं क्यों हमेशा सेवा ही करता रहूं, क्यों ना मैं इस सेवा को भोग करूं, क्यों ना लोग मुझे सेवा करें। तो इस मनोस्थिति में वो भगवान को भूलने लगता है धीरे धीरे। वो अब हम इस जगत में क्यों आए हैं? क्योंकि एक स्थिति ऐसी थी जब हम भगवान को के साथ उनके हम गोलोक वृंद में थे और हम भगवान के साथ ही भगवान को सर्व कर रहे थे, पर उस समय एक इच्छा जागृत हुई कि भगवान ही क्यों सर्व कर रहे हैं, हाँ भगवान ही क्यों हर चीज को एंजॉय कर रहे हैं, हम क्यों नहीं भोक्ता बन सकते, तो हम क्यों नहीं इसे एंजॉय कर सकते। तब हम भगवान से दूर हुए और इस भौतिक जगत में आए। अब इस भौतिक जगत में आए हैं तो बहुत सारी चीजें हमें अट्रैक्ट कर रही हैं। कभी हम बाहर निकल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि चलो मूवी देख ली जाए, कभी हम बाहर निकल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि चलो सभी तो डांस कर रहे हैं बॉलीवुड मूवी पे, हम क्यों ना करें। तो जब हम इन अलग अलग चीजों में, अलग अलग कार्यों में रत हो जाते हैं, तो धीरे धीरे हम भूलने लगते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है इस जीवन का, हमारा धर्म क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है। तब हम पूरी तरह भूल रहे हैं। तो आचार्य समझाते हैं कि हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस जगत में दो तरह की जो लोग आए हैं, वो दो तरह के विचारधारा से आए हैं। एक ये है कि मैं सिर्फ एंजॉय करने आया हूँ, दूसरा ये कि मैं यहाँ पर किसी का दास हूँ। तो जो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो अभी हमने डिस्कस किया, पहली कैटेगरी जो हमेशा एंजॉय ही करना चाहते हैं, जो सिर्फ भोगना चाहते हैं, उन्हें और कुछ नहीं मिलेगा। आगे जाकर उन्हें सिर्फ और सिर्फ नरकवास होगा, और वो हेलिश प्लैनेट में अलग अलग तरह के जो नरक बताए गए हैं वहां जाएंगे। और वहां जाकर क्या करेंगे? वो अपनी इन जो अभी कर्म कर रहे हैं उन्हें भोगेंगे, और तब भी अलग अलग परिस्थितियों में वो जाएंगे जहां उन्हें सिर्फ और सिर्फ कष्ट मिलेगा। और जो दूसरी तरह का है, जो दूसरी तरह के लोग हैं, जो हमेशा सोचते हैं कि मैं एक दास हूँ, जो एक उच्च अधिकारी जो भक्त हैं उनकी तरह सोचते हैं, जो सोचते हैं हमेशा कि मैं सिर्फ भगवान का दास हूँ, या भगवान नहीं, मैं दास अनुदास हूँ। जो भगवान के दास है, मैं उनका भी दास और दास और दास हूँ, उनके भी दासों का दास हूँ। तो ऐसे जो भक्त हैं वह हमेशा इस भौतिक जगत की काफी जो परेशानियां हैं उन सबसे दूर रहते हैं, और उन्हें फिर भौतिक जगत की जो माया की जो फैलाई हुई जाल है वो उसमें फंसते नहीं है। वो हर छोटी छोटी चीज से आकर्षित नहीं होंगे। वो हमेशा
भगवान को सर्व करने के बारे में सोचेंगे। वो सोचेंगे कि मैं भगवान को कैसे सर्व करूं, भगवान के भक्तों को कैसे सर्व करूं, मैं भगवान के भक्तों को कैसे अपनी सेवा प्रदान कर सकता हूं। तो इस तरह देखा जाता है कि हम हमेशा कोशिश कर सकते हैं कि हम वैष्णवों को अपने घर बुलाएं और वैष्णवों को अलग-अलग तरह से सर्व करें। वैष्णवों को सर्व करने का तरीका सिर्फ प्रसाद पिलाना है, प्रसाद सर्व करना ही नहीं, अलग-अलग तरीके हैं। जैसे हम जैसे प्रभु अभी कह रहे थे, हम पहले दुबई में थे, तो वहाँ हम देखते थे कि हम जब दुबई पहुँचे तब हमारे पास कार नहीं थी, पर हमें भक्तों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया कि हम उनके प्यार में बंध गए थे। तो भक्त हमें अपनी कार में लेकर जाते और अपनी कार से फिर छोड़कर भी हमारे घर जाते। तो ये सब क्या था? ये वहाँ के जो परम भक्त हैं, उनका एक भाव था कि वो हमेशा सर्व करना चाहते हैं, वो हमेशा भक्तों को अपनी सेवा प्रदान करना चाहते हैं। और उससे हमने भी बहुत कुछ सीखा। तो जो भक्त एक दूसरे को सेवा प्रदान कर रहे हैं, उससे सभी में एक अटूट प्रेम का संबंध स्थापित होता है। फिर हम वैष्णवों के अलावा अपने स्पिरिचुअल अपने गुरु को सेवा प्रदान कर सकते हैं। उसके तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम अपने गुरु महाराज को की वाणी को का अनुकरण करके उन्हें सेवा प्रदान कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीका है हमें गुरु महाराज को सर्व करने का। फिर हम उन्हें अलग-अलग तरह से फिजिकल वे में सर्व कर सकते हैं। जब हम उनके समक्ष हैं तो उन्हें अच्छा प्रसाद उनके लिए बनाकर, उन्हें पाद सेवा करके, ये बहुत जो फॉर्चुनेट भक्त होते हैं, उन्हें ये सेवा का मौका मिलता है, उनकी पाद सेवा का, उनकी मसाज करके, उनके चरणों की। तो और जो गुरु महाराज के अलग-अलग तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जहाँ वो खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कई महाराज हैं जो मंदिर बनाना चाह रहे हैं, या कोई महाराज हैं जो काव प्रोटेक्शन पे फोकस कर रहे हैं। तो हमें उनको उन सेवाओं में उन्हें असिस्ट करना है। तो इस तरह हम गुरु महाराज को सेवा प्रदान से उनके आश्रय में रहकर उन्हें सेवा प्रदान कर सकते हैं। और जब हम भक्तों को और गुरु महाराज को अपनी सेवा प्रदान करेंगे, तभी हम कृष्ण को सेवा प्रदान करने के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। जब हम धीरे-धीरे इस प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे, तब हम समझेंगे कि जब भक्त हमसे खुश होंगे, तब हमें वो राह दर्शाएंगे कि हम गुरु को कैसे खुश करें। जब हमारे गुरु हमसे खुश होंगे, तब हम आगे बढ़कर वो हमें बताएंगे कि कृष्ण कैसे खुश हो रहे। तो ये एक पूरी चेन है, और जो इस बात को समझ गया, वह हमेशा अपने आप को सिर्फ सर्वेंट, एक दास ही समझेगा, और अपनी सेवा हमेशा सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अब और इसी से हम देखते हैं कि जब कोई सेवा प्रदान कर रहा है, तो वो खुद भी खुश है और भक्त भी खुश है और गुरु महाराज भी खुश है। और जब गुरु खुश है, तो कृष्ण हम पर बहुत खुश होंगे, और जब कृष्ण हमसे खुश है, तब हमें हर तरह से प्रोटेक्शन देते रहेंगे। अब हम देखते हैं कि कई बार हम सोचते हैं, भक्त एक दूसरे से हमने देखते हैं प्रश्न कर रहे होते हैं कि मैं कैसे पता करूं कि मैं भक्ति में अग्रसर हूं या नहीं हूं, कैसे मैं भक्ति में एडवांसमेंट कर रहा हूं। तो इसकी एक बहुत अच्छे से हम खुद को असेस कर सकते हैं, या खुद को हम एक पैरामीटर में देख सकते हैं कि हम भक्ति में अग्रसर हैं या नहीं। तो उसके लिए हमें देखना है कि हमें भक्ति भाव जाग रहा है कि नहीं, हम किसी को सर्व करना चाह रहे हैं कि नहीं। तो इसके अलग-अलग लेवल्स हैं। जैसे अब हम देख रहे हैं कि अगर हम स्पिरिचुअल मास्टर अपने गुरुदेव को
सर्व कर रहे हैं, कि इच्छा भी हमें जागृत हो रही है, तो हाँ, ये आप में ये हम में ये दर्शाता है कि हम भक्ति में अग्रसर हैं। जब हम सोचते हैं कि आज हमारे घर भक्त आ रहे हैं, तो हम उन्हें अच्छे से अच्छा प्रसाद सर्व करें, या आज भक्त कहीं दूसरे देश से आ रहे हैं, तो मैं उन्हें रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट लेने जाऊं और उन्हें अच्छे से अच्छी गाड़ी में बैठाऊं, या अच्छे से अच्छे तरह से उन्हें जहां उन्हें जाना है वहां पर पहुंचाऊं। तो ये जब हमें भक्ति भाव जागृत हो रहा है, तो ये दर्शाता है कि हाँ, हम भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं। या कई बार हम सोचते हैं कि आज भगवान को क्या खाने का मन कर रहा है, आज मैं भगवान के लिए भोग में क्या बनाऊं, या आज भगवान को जब मैं अभिषेक कर रही हूँ, तो भगवान कौन से वस्त्र पहनना पसंद करेंगे। तो ये जब छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं और जब हम सोचते हैं कि अच्छा मैं भगवान को कैसे खुश करूँ, या तो हमें जब ये इच्छा जागृत होने लगती है कि हम उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करते रहें, तब ये दर्शाता है कि हम भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम ये भक्तों को सर्व करने का एटीट्यूड रखते रहे, तब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तब हम गोलोक वृंदावन जाने के लिए अपने आप को प्रमोट के लिए तैयार भी कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट तरह के स्टेजेस हैं जब हम अपने आप को हम अपने आप को असेस कर सकते हैं कि हम कितने अग्रसर हैं। तो बट कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हम भक्तों में भी कई बार देखते हैं कि जब कोई हाँ, एक ऊंचे पद पर पहुंच रहा है, जैसे मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट बन रहे हैं, या तो वो कई बार उनमें एक ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट कभी-कभी पास्ट में ऐसा हुआ है कि जब उनमें थोड़ा ईगो आ गया है, वो सोचने लगे कि अब तो मैं मंदिर का प्रधान बन चुका हूँ, तो अब मुझे कोई किसी चीज के लिए नहीं रोक सकता। जबकि वो यह नहीं जानते कि वो भी जब प्रधान बने हैं, तो उन्हें भी कई भक्तों के गाइडेंस में और कई भक्तों के निर्देश के अनुसार, उनके सपोर्ट से ही वो इस पद पर आए हैं। तब वो जब किसी के साथ किसी को दुर्व्यवहार तो नहीं कहूंगी मैं, कि किसी को थोड़ा नीचा दिखाना चाहते कि अच्छा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, तो वो एक गलत तरीका है। जबकि एक जो परम भक्त है, वो उसमें ऐसी भावना कभी नहीं आएगी। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम बहुत अलग-अलग देशों में रहे हैं, और वहां पर हम हमेशा जो यात्रा के जो प्रधान रहे हैं, उनके बहुत संपर्क में आए, तो बहुत प्यार मिला, बहुत उन सब से हमें केयर मिली, तो उनसे हमने भी बहुत कुछ सीखा है। तो हम जब दुबई में थे, तो हर कोई जानता है श्री वल्लभ प्रभु इतनी बड़ी यात्रा है, पर उन्होंने हर किसी को इतना एक डिवोटी को वो इतना केयर करते हैं कि वो उन्हें लगता है कि पर्सनल केयर देते हैं, कि उन्हें लगता है कि अच्छा ये सिर्फ मेरी यानी मुझे इतना केयर कर रहे हैं, मुझे इतना ध्यान दे रहे हैं, तो वो भक्त हमेशा से उनसे जुड़ जाता है। तो इसी तरह हमें दूसरे भक्तों से सीख कर अग्रसर रहना है कि कैसे डिवोटीज की भक्तों की सेवा करें और भगवान की सेवा करें, और हमेशा ये भाव मन में रखें कि हमें सिर्फ और सिर्फ दूसरों को सर्व करना है, भक्तों को सर्व करना है। तब हम ये कभी नहीं भूल पाएंगे कि जो भगवान है वही सर्व महेश्वर है, वही इस जगत को भोग करने वाले हैं। तो कई बार हम भक्ति शास्त्र में पढ़ रहे हैं कि मनुष्य इस पूरे जगत को देखते हैं कि कई साइंटिस्ट और कई जो नेता हैं, या जो कई प्रधान हैं देशों के, वो इस पूरे विश्व पे राज करना चाहते हैं। तभी तो इस विश्व में हम देख रहे हैं इतनी विषम परिस्थितियां चल रही हैं, कहीं युद्ध हो रहे हैं,
और कई देशों में हम देख रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति है कि लोगों के पास खाने के लिए एक 3 टाइम का भोजन नहीं है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इन देशों के जो नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो चाहते हैं कि वही इस जगत पे राज करते रहें, वही इस संसार पे राज करें, और जो दूसरे देश हैं, उन्हें वो खुश नहीं देख सकते। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि वो भूल चुके हैं कि वो इस जगत के पालनहारता नहीं, इस जगत के पालनहारता सिर्फ और सिर्फ कृष्ण हैं। जब उन्हें किसी ने इस बात का ज्ञान ही नहीं दिया, उन्हें किसी ने इस बात से बोधित ही नहीं कराया कि इस जगत को की रक्षा के पालनहारता कृष्ण है। तो इन सब चीजों की वजह से आज हम देख रहे हैं कि लोगों ने इस तरह की मनोवृत्ति धारण कर ली है कि वही इस जगत को कंट्रोल कर सकते हैं। पर हम देखते हैं कि जो भक्त होते हैं वह उनकी मनोस्थिति अलग है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और फिर वह एक बार जब भक्ति में आते हैं तो इन सब चीजों से उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि इस देश का नेता कौन है या इस देश का प्रतिनिधि कौन है। वह अपने आप में खुश है क्योंकि वह जानते हैं कि इस जगत का पालनहारता कौन है। तो ये सब सिर्फ कृष्ण की वजह से हो रहा है। वो सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वह कृष्ण को वो समझ चुके हैं कि इस जगत के पालनहारता कौन है। और हम देख रहे हैं कि कृष्ण जो है हमेशा हर किसी की, अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरी करने की पूरी करते हैं। कोशिश नहीं करे, वो पूरी कर रहे हैं। और इन चीजों को देखकर भक्त समझ रहा है कि ये कृष्ण ही परम है, और वो उन्हें पूरी तरह सर्व कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि कृष्ण जो है वह सुप्रीम एंजॉयर है। कृष्णा ही इस जगत के भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा नाम शांति मृच्छति। तो अगर हम समझ लें कि इस बात को जो भी समझ लेगा कि कृष्ण ही इस जगत के भोक्ता है, वह हमेशा शांत, वही इस जगत में खुश रह पाएगा और उसे शांति मिलेगी, पीसफुल रहेगा। जब हम सोचेंगे कि हमें कुछ भोगना नहीं है, तो हम उस चीज को पाने के लिए एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे। जो इस देश में अभी हो रहा है वह सब नहीं होगा, और आपस में सब शांति से रहेंगे, क्योंकि उस समय सबका एक ही एम होगा कि हमें सिर्फ एक जो परमात्मा है, जो भगवान है, उन्हें खुश करना है। सब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, सब एक ही दिशा में कार्यरत रहेंगे। तो जो भी आज हम स्थिति में है, उन सब स्थिति से ऊपर आएंगे। तो अब हम देखेंगे कि जो परीक्षित महाराज थे, उन्हें ब्रह्मास्त्र, अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। उस ब्रह्मास्त्र से बचाने, उन्हें उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए भगवान मदर उत्तरा के भूमि में गए, और भगवान उन्हें तब परीक्षित महाराज ने उन्हें उस भगवान को उस माता के भूमि में जब देखा, तो जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, तब भी परीक्षित महाराज हमेशा उन्हें खोज रहे थे कि जिन्हें उन्होंने देखा है वो कौन है, और वो उन्हें हमेशा खोजते रहे। तो जैसे परीक्षित महाराज ने एक मनोवृत्ति धारण की थी कि उन्हें वह कर ही रहना है, हमें भी वह मनोवृत्ति धारण करनी चाहिए। तभी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। जब हम भी यही सोचते रहेंगे कि इस जगत के पालनहारता कौन है, जो हम सबको इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भगवान ने एक चींटी को भी प्रोटेक्शन दिया है और एक हाथी को भी, हम मनुष्य को,
हर तरह की जो अलग अलग तरह के जो जीव इस जगत में आ रहे हैं उनको कौन प्रोटेक्शन दे रहा है, उन्हें कौन रक्षा कर रहा है, उन्हें कौन खाना दे रहा है। हम मनुष्य सोचते हैं कि हम फसल पैदा कर रहे हैं, हम अलग अलग फैक्ट्रीज में अलग अलग तरह का खाद्य पान क्रिएट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ भगवान है, भगवान हमें सिर्फ माध्यम बना रहे हैं। अब अगर एक जंगल में एक हिरण रह रहा है तो भगवान ने ही उसके लिए पेड़ पौधे बनाए हैं कि जिसे वो खा सकता है, और एक शेर है जो उस हिरण को खा रहा है। ये सब भगवान ने ही रचा है। तो उन्हें कोई हिरण या शेर को जंगल में ले जाकर खाना नहीं दे रहा है, एक मनुष्य ले जाकर उन्हें खाना नहीं दे रहा है, भगवान ने ही उनके लिए खाना बनाया है, भगवान ही उन्हें रक्षा प्रदान कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान। जब एक हिरण को एक शेर पकड़ने आ रहा होता है तो हिरण को भगवान ने ही वो ज्ञान दिया है कि वो वहां से भागे और अपने आप को बचाए। परंतु मनुष्य ये नहीं सोचता, मनुष्य ये सोचता है कि अच्छा मैं ही हूँ जो अपने आप को बचा सकता हूँ, मैं ही हूँ जो मैं अपने आप का पालन कर रहा हूँ और अपने परिवार का, अपने समाज की और अपने देश की रक्षा कर रहा हूँ। हम तो सिर्फ माध्यम हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका आंसर फिर वही है कि हम जो भगवान को भूल रहे हैं वह ये सब धारण कर रहे हैं। तो जो श्रील प्रभुपाद ने इस पर्पट में बताया कि जो 3 तरह के जो भक्त हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी एंड महाभागवत। तो जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनमें भगवान के लिए थोड़ा फेथ है कि हाँ भगवान है, तभी वो मंदिर जाते हैं, तभी वो सोचते हैं कि मैं मंदिर आया हूँ तो प्रणाम करूं, और वह भगवान को दंडवत करते हैं। परंतु अभी भी उनमें पूर्ण भगवान के लिए पूर्ण प्रेम नहीं जागृत हुआ है। वो सिर्फ जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान को प्रणाम करेंगे तो हमें कोई अच्छा बेनिफिट, कोई अच्छा लाभ होगा। तो हमेशा ये जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनमें कुछ चाह है, कुछ मिलने की एक उम्मीद है। तो हमेशा एक भक्त को कनिष्ठ उस पर लेवल पर नहीं रहना है, उसे धीरे धीरे भगवान के लिए, भक्तों के लिए प्रेम जागृत करना है अपने मन में। अब जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वो कैसे अग्रसर हो सकते हैं? तो कनिष्ठ अधिकारी वो हैं जो डेफिनेटली भगवान की जो भगवान की लीला है उनको सुन सकते हैं, उनमें विश्वास कर सकते हैं, तभी तो वो मंदिर आ रहे हैं। तो ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा भक्तों के संग में रहना चाहिए। जब वो भक्तों के संग में रहेंगे तो वो समझेंगे कि भगवान कौन है। जब वो भक्तों के संग में रहेंगे तो उन्हें भगवान का असली स्वरूप का ज्ञान होगा। जैसे भक्त का संग क्या है? भक्त का संग है आचार्यों को सुनना, श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़ना। श्रील प्रभुपाद आज भी हम सबके बीच हैं अपनी किताबों के माध्यम से। सो जब एक कनिष्ठ अधिकारी भक्तों के संग में आता है तो धीरे धीरे उसमें वह भगवान के लिए प्रेम जागृत होगा। अब हम देखते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी के लिए ये भी रिकमेंडेड है कि वह भगवान के ही प्रसाद को ग्रहण करें, जो हम भगवान को भोग लगा रहे हैं उस प्रसाद को ग्रहण करें। परंतु कनिष्ठ अधिकारी के लिए वो लेवल पे पहुंचना थोड़ा सा टाइम लेगा उसमें। जब भगवान ऐसा कैसे होगा? तो बस एक ही तरीका है कि वह भगवान के भक्तों के संग में रहे और धीरे धीरे वह दूसरे लेवल पे आएगा, तब वो बनेंगे मध्यम अधिकारी। तो जो मध्यम अधिकारी हैं वह कौन है? वह है जो विश्वास करते हैं और वह सोचते हैं कि मैं ही वो डिवोटीज को तो हमें हर तरह से
सम्मान दिखाते हैं उनके लिए, वो उनके साथ रहने में खुश रहते हैं, भक्तों के साथ रहकर वो बहुत खुश रहते हैं। और भक्त जो कर रहे हैं वो उन्हें धीरे-धीरे उनको कॉपी करने लगते हैं, उन्हें देखकर वो सब उन्हें खुद भी करने लगते हैं और तब वो दूसरी डिग्री का उनके भक्त बनते हैं, मध्यम अधिकारी। तो इसमें भी उन्हें वही करना है जो कनिष्ठ अधिकारी कर रहे थे। इसमें भी उन्हें हमेशा भक्तों के संग में रहना है। भक्त कीर्तन करते हैं, भक्तों के साथ बैठकर कीर्तन करें, भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद पाएँ। भक्त जब बैठे हैं तो भक्त हमेशा जो परम भक्त हैं, जो महाभागवत हैं, उनके संग रहे। तो जो महाभागवत है वह कौन है? महाभागवत वो हैं जो हमेशा कृष्ण की लीलाओं में रत रहते हैं और हमेशा एक उनमें विश्वास है कि हाँ, जो भी हो रहा है मेरे साथ वह सही है और कृष्ण ही हम मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो जो महाभागवत होते हैं ना, उन्हें किसी तरह से कष्ट भी मिलता है ज़िंदगी में, तो वो यही वह इस बात को समझते हैं कि कृष्ण जो है मेरा जो कष्ट है वो मेरे कर्म कम कर रहे हैं ताकि मैं भगवान के पास वापस भगवान के पास उस भाव से जा सकूँ जब मेरे पास कोई बुरे कर्मों का खाता ना रहे। तो महाभागवत उस लेवल टॉप लेवल के डिवोटीज हैं, उच्च स्तर के भक्त हैं वो। तो जो हम बात कर रहे थे मध्यम अधिकारी, जो मध्यम अधिकारी हैं वह महाभागवत को हर तरह से सेवा देंगे और उन्हें खुश करने की कोशिश करेंगे। मध्यम अधिकारी सोचेंगे कि मैं किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें सेवा दूँ और उन्हें प्रसाद बनाऊँ उनके लिए, उनके साथ बैठकर सुनूँ कि उनका प्रवचन सुनूँ कि कैसे भगवान को सेवा की जाए और कैसे भक्तों की सेवा की जाए। और धीरे-धीरे फिर यह मध्यम अधिकारी जब उनके उच्च अधिकारी भक्त को फ़ॉलो करते रहेंगे, तब वह उनको फ़ॉलो करते हुए वह खुद भी धीरे-धीरे उच्च अधिकारी बनेंगे। और जब उच्च अधिकारी हैं, उसमें जो फ़ेथ है, हम देख चुके हैं प्रहलाद महाराज की स्टोरी हमने सुनी है। हम प्रहलाद महाराज की कथा हम सब जानते हैं। फिर हम ध्रुव महाराज की कथा जानते हैं। तो ये सब सिर्फ़ हमारे सुनने के लिए नहीं है, ये जो सब कथाएँ श्रीमद् भागवतम में हैं, जो श्रील प्रभुपाद ने इतनी मेहनत करके हम सबके लिए ये भागवत का जो ट्रांसलेशन किया है, ये सब किसके लिए है? ये सब हमारे अनुकरण करने के लिए। हम उन्हें सुनें और हम धीरे-धीरे उसे अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करें। तभी वह एक स्टेज आएगी जब हम माया के जाल से बाहर आएँगे और हम हम भगवान को कभी नहीं भूल पाएँगे। तब हम माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यही स्थिति पे पहुँचने के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं, हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम सब एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर चल रहे हैं। तो मैं बस यहीं विराम दूँगी कि इस जर्नी को हमें कंटिन्यू करना है, एक-दूसरे का साथ देना है और रोज़ जैसे आप सब रोज़ भागवत कथा कर रहे हैं हमें वो करते रहना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। मुझसे कोई तकलीफ हुई हो तो मैं क्षमा चाहूँगी। नो माता जी, रियली बहुत अच्छा लगा आपको सुन के और बहुत अच्छे से आपने जो आज का श्लोक था इसको आपने प्रेजेंट किया कि कैसे जो है प्रभुपाद जी इसको इसका विश्लेषण कर रहे हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि पर्पट में और बहुत से पॉइंट इसमें अच्छे थे माता जी, जो मुझे अच्छा लगा। सॉरी, तो उसमें ये था कि कैसे मतलब कनिष्ठ अधिकारी का क्या रोल है, मध्यम अधिकारी का क्या रोल है और उत्तम अधिकारी या महाभारत का क्या रोल है। तो इससे हम लोग अपने आप को गेज करना चाहिए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं तो दूसरे भक्तों को देखते हैं, जब सीखते हैं तो हम लोग दूसरों को गेज करते हैं कि अरे ये तो कनिष्ठ अधिकारी है, अरे ये तो मध्यम अधिकारी, ऐसे नहीं करना चाहिए। हम लोग हमेशा भी जब चर्चा करते हैं यही बोलते हैं कि दिस इज फॉर आवर लर्निंग, कि हमको खुद को गेज करना चाहिए कि मैं यहाँ पे किस पोजीशन पे हूँ और हूँ, तो वहां से मैं नेक्स्ट लेवल पे कैसे मैं बढ़ूँ उसमें। तो वो आपने बहुत अच्छा समझा माता जी कि कैसे जो है
अपने जो गुरु महाराज का सेवा करना चाहिए, भक्तों का सेवा करना चाहिए, और ये करने से ही जो है हमारे अंदर सेवा भाव और बढ़ता रहेगा, हम लोग और भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और ये करेंगे तो ही हम लोग गोलोक वृंदावन के लिए हम लोग एलिजिबल होंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे भी जाके सेवा करना है, वहाँ पे जाके आराम से हम लोग टांग फैला के बैठने वाले नहीं है हम लोग वहाँ पे, विल बी मोर बिजियर देन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो गोलोक में इतना सेवा है वहाँ पे, तो वी हैव टू कीप सर्विंग। अगर ये सेवा का एटीट्यूड, इस सेवा का मूड अगर हमारे में नहीं, हम लोग देखते हैं नॉर्मली लोग बात करते हैं कि सेवा करना है, लेकिन एक्चुअल जब सेवा का समय आता है तो देन देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन। तो वो जो सेवा का मूड है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो सिर्फ आई थिंक एक ह्यूमिलिटी से आता है। जब आदमी जब हम्बल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली फिर वो सेवा करना, फिर वो ये नहीं देखता कि ये भक्त कैसा है, कौन है, क्या है, उसके बॉडीली जो डेजिग्नेशंस को नहीं देखता। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया था माता जी। और दूसरा जो पॉइंट आपने बताया कि हम अगर भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं तो नॉर्मली हम लोगों को क्वेश्चन आता है कि क्या मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, तो वी हैव टू जज अवर सेल्फ कि क्या मेरे अंदर ये जो भक्ति जो सेवा करने का एटीट्यूड आया है, अगर मैं सेवा कर रहा हूँ तो मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, अगर नहीं सेवा हम लोग नहीं कर रहे हैं तो देन स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे माता जी। तो मैं क्विकली अगर आपके पास 5 मिनट तो मैं आई विल आस्क फॉर सम क्वेश्चंस। अगर आज के संबंध में कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, तो हम लोग माता जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhu, I don't know I'm eligible for that. Yes, sir. या प्रेम सखा प्रभु जी। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। इट वाज ए वेरी वंडरफुल क्लासेस, बहुत से सारे पॉइंट आपका, आपने जैसे उत्तम कनिष्ठ, मध्यमा और कनिष्ठ भक्तों के बारे में बताया, 3 तरह का भक्तों के बारे में, और दूसरे जैसे आपने बताया राखे कृष्ण मारे के। अगर कृष्ण चाहता है हमको कौन मारेगा, अगर कृष्ण मारने चाहता है तो कौन रख सकता है, कोई देव देवी कोई भी नहीं रख सकते। मैंने अभी दूसरे एक और होता है कि जैसे कह रहे थे मतलब चैतन्य चरितमृत है, कृष्ण राखी बारे नारे, गुरु राखी बारे तारे। मतलब अगर कृष्ण आपको नहीं चाहता है रखने का, लेकिन गुरु आपको रख सकता है। आपका मन का बात अगर कृष्ण को पूछने में अगर यू हैव टू गो थ्रू गुरु, हाँ, आपको ऐसा हो सकता है आपको कृष्ण, आपको जो प्रॉब्लम होता है, हमारा जो प्रॉब्लम होता है, कृष्ण हो सकता है आ सकता है, नहीं आ सकता है मे बी, लेकिन आपने जब गुरु का पास जाके मन से प्रार्थना करेगा, जरूर आपको गुरु बचाएंगे। दूसरे कल में एक और लेक्चर में सुन रहा था, मतलब अपना मायापुर का लेक्चर में, जब बचपन में हम लोग बचपन में जब भक्ति करता है, वो भक्ति क्या होता है माता जी, घी का तरह होता है, क्योंकि हमारा भगवान के जो दिया जलाता है वो घी को इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। तो बचपन में जब हम भक्ति करता है वो घी का तरह होता है, और युवक में हम जब भक्ति करता है तेल का तरह होता है, और वृद्ध अवस्था में जब हम भक्ति करते हैं वो पानी का तरह होता है, जल का तरह। क्योंकि वृद्ध अवस्था में हम लोग जो भक्ति करते हैं वो भक्ति क्या होता है, क्योंकि हमको कोई देखने वाला है नहीं, आखिर में हमको कोई कृष्ण के पास जरूर आना चाहेगा, क्योंकि हमारा बेटा बोलो कोई भी बोलो हमको देखने वाला लास्ट में, क्योंकि वृद्ध अवस्था सबको पता है, मतलब एक बार्डन हो जाता है फैमिली में, अरे एक बार्डन हो जाता है। तो आखिर में क्या होता है, हम लोग मतलब भगवान का तरह भगवान को, तो वो जो भक्ति, तो बचपन में जो भक्ति होता है ना, तो बचपन में भक्ति इसलिए कह रहे हैं, तो बचपन में जो भक्ति करते हैं माता पिता बोलो बस किसी को बोलो, उसके ऊपर उतना प्रेम नहीं होता है जब जितने मतलब भगवान की तरह प्रेम हो जाता है। तो इसलिए क्या कहती है, मतलब बचपन में जब हम भक्ति करते हैं घी का तरह होता है, युवक में जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो माँ का साथ प्यार हो जाता है, बहन के साथ प्यार हो जाता है, सबका था। तो इसलिए कह रहा है वो तेल का तरह है, और वृद्धावस्था में क्या होता है माता जी, जल का तरह। वृद्धावस्था में आपको तो कोई देखने वाला नहीं है, आखिर में क्या, चलो हरि नाम करेंगे, कृष्ण अगर हमको देख लिया तो चलो। तो वही बहुत अच्छा क्लास था माता जी, बहुत अच्छा क्लास, बहुत सारे हमारे पास और भी पॉइंट था, तो टाइम का वजह से चलो, हाँ, और दूसरे किसी को भी बोलना है। थैंक यू माता जी, इट वाज वेरी वंडरफुल क्लासेस, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रेम सखा प्रभु जी।
या जया, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा क्लास था। यू एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग सो वेरी वेल। आई एक्चुअली फेल्ट कि मेरे इन दामोदर देश वी अटेंड यूथ प्रोग्राम्स एंड मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे कोई क्लासमेट ही बोल रहे हैं। नाउ दे हैव ऑल गॉट इनिशिएटेड, so you reminded me of them and I really became in between कोई points आपने बोले, this was really touching and I got really emotional because ये sometimes happens when I read Gita also, because purport is very heavy to read. So people like me, like I still feel I'm neophyte only after आपने जो lecture आज आपने जो क्लास दी, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हमको क्रॉस वेरीफाई होता है कि हम कौन से लेवल पे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो अभी भी कनिष्ठ हूँ या अभी भी नियोफाइट हूँ, because your class was only so brilliant, which actually gives us a reality check where we are standing, and really wonderful. I really would like to pay humble obeisances to you. Very inspiring and you're very inspiring and your class is really wonderful. Thank you, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद जी। तो जब हम कह रहे हैं कि sometimes Srila Prabhupada's purports are very high level, it's difficult to understand. That can be done when we are sitting with devotees. In association of devotees, these purports will become easier and easier to understand. That's what we are doing here. Yes, Mataji. Thank you, Jaya. Yeah, anybody else would like to ask some question? Sarod Mata Prabhu, Satyaraj Prabhu. ओके, और किसी का कोई प्रश्न नहीं तो हम लोग आई थिंक या सत्यराज। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग माता जी। प्रभु जी, मैं एक ही सेंटेंस बोलूंगा माता जी के लिए। यू आर कंप्लीट मर्सी ऑफ गुरु महाराज। हरे कृष्णा। We all are getting Guru Maharaj वैसे। Yeah, thank you, Satyaraj. Yeah, Vrachya Mataji. Vrachya Mataji. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आई एम श्योर माता जी ने मुझे पहचाना होगा। माता जी आवाज से लग रहा है कि एक बार आप कैमरा चालू करिए, मैं सही हूँ कि नहीं देखना चाहती हूँ। जी सही थे, पहचान लिया बहुत अच्छे से। कैसे आप माता जी? माता जी एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? सबसे पहले तो मुझे ये बोलना है, बहुत 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 खुशी आपको देख के और आपको सुन के। मुझे बहुत खुशी हो रही प्रभु का क्लास सुना था तभी मैंने सोचा था प्रभु का क्लास इतना अच्छा था तो माता जी उनकी अर्धांगिनी है, उनका भी बढ़िया ही क्लास हुआ। जैसे स्टार्ट हुआ आपकी स्टार्टिंग ही, आपका इतना स्वीट आवाज सुन के अच्छा लगा। अब तो आगे अच्छा अच्छा सुनने ही मिलने वाले। तो माता जी थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से सब और अच्छे से पूरा पॉइंट्स बता के थोड़ा टाइम में कवर कर लिया ऐसे, तो बहुत बढ़िया था माता जी। और हम तो चाहेंगे कि आप फिर से आइए, क्योंकि हमारे पास जो एक बार आता है ना, उसको हमारा साथ भी इतना अच्छा लगता है कि वो कभी हमें मना करते ही नहीं है। आपको फिर से सुनने का हम बहुत बहुत आशा रखेंगे। थैंक यू वेरी मच माता जी। टेक केयर माता जी। हरे कृष्णा। डेफिनेटली माता जी, मैं स्वार्थी बनूंगी, मैं आना चाहूंगी, क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा कि हमें भक्ति में अग्रसर होना है तो हमें डिवोटी भक्तों का संग बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी यहाँ पर। और थैंक यू गोपी मनोहर प्रभु जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आप सबका एसोसिएशन मिला, आप सबसे सीखने को मिला। Thank you, Mataji. I think एक और somebody has raised hand. Surat Mata Prabhu.
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच माता जी। जस्ट मुझे एक शेयर करना था कि जैसे आपका लेक्चर शुरू हुआ एंड आप इंग्लिश में बात कर रही थी एंड सडनली गोपकुमार प्रभु ने कहा कि रिक्वेस्ट किया कि अगर हिंदी में, तो बहुत ही ये मतलब अपना प्रिंसिपल जो है, लाइक अपना जो सेवा, वी डू इट फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु गौरांग वैष्णव। तो आपने वो बहुत ही अच्छे तरह से माता जी मतलब जैसे प्रभु ने कहा, आपने बोला हिंदी से उल्टा है, तो ये जो प्रिंसिपल हमारा है, वी डू सर्विस फॉर द प्लेजर ऑफ, तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से उसको हाईलाइट किया। एंड मैं वही मतलब फिर आपने बहुत ही अच्छी तरह से हिंदी में इतना अच्छा क्लास दिया माता जी। सो इससे पता चलता है कि व्हेन वी जैसे हमारे वरिष्ठ भक्त कहते हैं, अगर हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते तो ऑटोमेटिकली कृष्णा और वो भक्ति से हमको पूरा पावर आ जाता है, एम्पावर हो जाते हैं। तो थैंक यू माता जी। सो दिस वाज माय लर्निंग टुडे, और बहुत अच्छा क्लास था माता जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। सो मैं वही कंटेम्पलेट कर रहा था कि किस तरह से वी हैव टू जस्ट डू एवरीथिंग एज अ सर्विस फॉर देयर प्लेजर, वो परफेक्ट हो जाता है, बिकम सक्सेस। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे थैंक यू कृष्ण सो मच। प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु जी ये सब भक्तों के एसोसिएशन से ही हुआ है जो हमने इतने सालों में सीखा। And सबका सच गुरु महाराज ब्लेसिंग प्रभु, बस उन्हें सुनकर हम रिपीट कर रहे होते हैं और कुछ नहीं। हरे कृष्णा। मतलब ये अपने ग्रुप में जैसे सूरत माधव है, ब्रजप्रिया है, सत्यराज है, ये मेजोरिटी जो है अपने दामोदर देश वाले ही हैं जो अभी यहाँ पे सेटल हो गए हैं। कोई मुंबई में, कोई कहीं पे। तो जैसे सूरत माधव प्रभु जी गोवा में है अभी। तो हम लोग वही कि ये कोरोना का जो एक हम लोगों ने एक बेनिफिट उठा लिया। हम लोग जो है हम लोग वहाँ पे थे तो हम लोग शायद हफ्ते में एक बार संग करते थे, लेकिन यहाँ पे कोरोना की वजह से हम लोग डेली हम लोग संग कर रहे हैं सुबह शाम। तो ये एक अच्छा एक हम लोगों को एक संग मिल गया है हम लोगों को, और इतने हम लोग से एडिक्टेड टू दिस कि हम लोग बिना इसको हम लोग सुने हम लोग रह नहीं पाते हैं। तो वही, तो सूरत माता प्रभु ने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। और जैसे ब्रजप्रिया माता जी ने भी कहा कि हम लोग आपको बार बार सुनते रहना चाहेंगे माता जी, तो ऐसे ही एटलीस्ट वंस इन ए मंथ और ट्वाइस, जैसा भी आपका मतलब कन्वीनियंट हो माता जी, प्लीज रिक्वेस्ट है आप ऐसे ही आते रहिए। इट विल बी वेरी नाइस। आप और प्रभु जी दोनों, प्रभु जी का भी क्लास बहुत अच्छा था, तो हम लोग दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं ऐसे ही आते रहिए माता जी। जरूर प्रभु, हम भी खुश होंगे, हमें भी भक्तों का संग मिलेगा जरूर प्रभु, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक तो यू माता जी। ये भी प्रभु आप सच में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नित्यम भागवत सीने, एवरीडे रीडिंग भागवत, बहुत अच्छा है प्रभु। नहीं तो नहीं हो पाता है, अकेले नहीं हो पाता है प्रभु, कितना भी कोशिश करें कि हम एक शेड्यूल बनाते हैं, बट इतने उस बिजी होते हैं अपने रूटीन में कि कभी ना कभी मिस होता है। बट जब सबका संग होता है तो एक नियम है कि करना है, करना है। एक इम्पेटस हो जाता है कि हाँ इतने सारे भक्त हैं तो चलो हम लोग करते हैं। एनकरेज सही है। या थैंक यू माता जी वंस अगेन। थैंक यू। मुझे रिक्वेस्ट कि आप ऐसे आते रही, मैं यहाँ पे रुकता हूँ, मैं यहाँ पे रुकते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, स्कंद गुरुवृंद की जय, हरि श्याम हरि माता जी की जय। थैंक यू माता। हरे कृष्ण। गुरुदेव तो की हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग नरसिंह आरती करेंगे माता जी। इफ यू वांट यू जी कैन लीव माता जी, और इफ यू वांट यू कैन स्टे। तो ओके हम लोग नरसिंह आरती करते हैं और प्रेयर्स करते हैं माता जी। प्रभु, I'll keep myself on mute. या Yeah. ओके, थैंक यू माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज सैटरडे है, आज किसका है आरती आज? सुजाता और राधा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी आज है ना, आई बोलते आज। ओके ओके, ठीक है ओके, ग्रेट ग्रेट।